we need to start with the margins. Margins हम लोगों ने कल कहा था कि margin is basically your profit is sales minus cost, ठीक है? और हमने ये भी देखा कल कि जो हम cost यहाँ पर बात कर रहे हैं वो दो किस्म की cost है. So costs are actually direct cost and indirect cost. यहाँ पर जो cost आपको ABC से मिली है that is indirect cost. ABC से indirect cost आएगी और direct cost directly traceable है, which in this particular question is direct material, direct labor and shipping. ये direct cost है, ये indirect cost है. Start करें question? Okay, so let's start the question now. Okay, product margin calculation. Now the first step is to calculate product margin, and we know we need data for sales and then cost. हमें दो चीजें चाहिए. Sales is given, standard sanctions 2,660,000. Custom campus housings 540,000. Total sale is 3,200,000. इसको अगर आप चेक करना चाहें उस income statement से जो इससे पहले हमने देखी थी, so it's the same. If you want to check, you can do that. Go to slide है, so that's good. Let's go to slide number 14. This is 36. 14. सही है? 3,200,000. Okay. So now let's go back to slide 36. 36. Okay. ठीक है? Okay. Direct cost था. हमने कहा हमें पहले से बताया इसमें तीन direct cost. Direct material, direct labor, shipping, which is given to you 95,500, 263,750, and 60,000. जो figures आपको income statement में given थी वो ये थी, the total of it. But now if you want to find out separately for each and every product, for each product line, तो फिर आपको ये figures अलग से given होंगी तभी आप कर सकते, ठीक है? आपके purpose के लिए practically ये figures कहाँ से आएंगी आपके पास? ये आपके पास आएंगी उस data से जो कि आपके management accountants ने तैयार किया होगा, जो आपको पता होगा कि कितना मटेरियल इसके लिए आया, कितना मटेरियल इसके लिए आया, कितना लेबर इस पे लगा, कितना लेबर इस पे लगा, इसको आपने शिप किया कितना कॉस्ट आया, इसको आपने शिप किया कितना कॉस्ट आया, ये इसका डायरेक्ट है, which is easily traceable, easily and economically traceable. So 95,500 plus 69,500 makes 975,000. If you want to cross check, you can go back once again to slide number 14. So it's 975,000. ठीक है? Direct labor is 351,250 and shipping is 65. So 351,250 and 65, 36, 34, 36 था? Okay. 351,250 and 65. Clear है यहाँ पे? यहाँ तक सारा क्वेश्चन क्लियर? अब आपने आगे क्या करना है? Direct cost is given to you. सिर्फ indirect cost है. Indirect cost ABC से हम लोग पहले find out कर चुके हैं. याद है कितनी? Yes sir. याद है? कहाँ पे हमने find out की थी? Do you remember? Do you remember कहाँ पे हमने find out की थी? यहाँ पे हमने क्या किया? सबको याद है? Yes sir. Okay. So now indirect cost is 524,500 for standard stanchions, 524,500, and for custom campus housings it is 427,500. So now go back to slide number 34. Okay. So now this is sales, this is direct cost. So how much is your direct cost? How much is your direct cost? Check it. Yes sir. Here and the direct cost over here. ठीक, दोनों ये यानी. Now let's talk about indirect cost. Indirect cost, okay, हमारे पास है 524,500. Then what will it be?
and for custom campus housings it was 427,500. इसका मतलब टोटल कॉस्ट आपके पास कितना है जो यहां से है जी यही आ रही है सेम आ रही है सेम आ रही है ओके सो नाउ यू वांट टू फाइंड आउट मार्जिन तो मार्जिन किस तरह फाइंड आउट होगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट ओके सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट जी फाइंड आउट करें जल्दी 960,250 sure Yes sir, 10 से 5 को हटाए तो 5%. ओके सॉरी मैंने 9 से हटा दिया ओके व्हाट अबाउट दिस वन So 49,500. ये तो माइनस नहीं है ऐसा ही वाला कौन से वाला So दोनों thing. ये वाला Yes, sir. हाँ ये माइनस में ठीक है दिस इज माइनस सो दैट मींस द टोटल ओवरऑल मार्जिन वुड बी 9 lakhs से 49,000 माइनस कर दूंगा फिर 32,000 करेक्ट 9,10,750. जी 9,10,000. 750. 9,10,000 और ये कहां पर होना चाहिए ये फिगर कहां पर होनी चाहिए ये फिगर मैं कहां से क्रॉस चेक कर सकता हूं देखो हमारा ऐसे इनकम स्टेटमेंट से लेट्स गो बैक टू इनकम स्टेटमेंट पहले वाली वैल्यू गलत पहली वाली ये वाली 962 वाली 962. ये क्या है ये 906 आ रहा है चेक करने का क्लास मैंने यहां तक किया था चेक करने से So 906,250. 906 2050 so that means this figure would be 8 something 856,700 Yes. सही है Yes sir. क्लियर है कोई मसला नहीं बिल्कुल सही लेट्स फाइंड आउट लेट्स क्रॉस चेक अगेन गो टू स्लाइड 14 नहीं 14 था ये तो ये क्या है Cross. 1000 So इसमें sales कितनी है हमारे पास? सेल्स हुई आपने सारी चीजें चेक कर चुके हैं एक एक करके मैंने आपको सारी चीजें चेक करवाई गो बैक टू स्लाइड नंबर 36 एंड फाइंड आउट व्हाट हैव यू डन रॉन्ग सेल्स माइनस कॉस्ट Yes. कॉस्ट में फर्स्ट आई हैव डायरेक्ट कॉस्ट दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट देन आई हैव इनडायरेक्ट कॉस्ट पीछे से फिगर ले ली दोनों को ऐड किया दिस इज माय टोटल कॉस्ट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट दिस इज माय प्रोडक्ट मार्जिन फॉर स्टैंडर्ड एक्सटेंशंस कस्टम कैंपस हाउसिंग ये इसकी सेल्स ये इसकी डायरेक्ट कॉस्ट सो दिस इज योर टोटल डायरेक्ट कॉस्ट दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमने इससे पिछले कैलकुलेशन से ली है सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट अ लॉस ऑफ 49,500 कैलकुलेशन चेक करते हैं सर सो दिस इज अ प्रॉफिट दिस इज अ लॉस सो रिजल्टेंट इज अ नेगेटिव तो नहीं आएगा सर पॉजिटिव कौन सी जगह? क्योंकि सर 9 लाख से 45 ना तो वहां पे तो वो लॉस कह रहे हैं यहाँ पे आपने प्रॉफिट किया हुआ सर है उन्होंने वहां से सर कि नहीं, पहले सर, profit डायरेक्ट नहीं को है। माइनस किए फिर इनडायरेक्ट तो मैंने भी पहले डायरेक्ट को माइनस किया फिर इनडायरेक्ट को माइनस किया लेकिन सर तो उसका तो ये रिकंसाइल कैसे होगा ये तो एबीसी और उसमें उन्होंने एक एबीसी है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम है सर लेकिन इसमें एक मिनट ऑर्गेनाइजेशन सेम है सेम ये कॉस्ट का डेटा वही कॉस्ट का डेटा है ये कॉस्ट का डेटा वही कॉस्ट का डेटा है वहां पे सारा वहां पे क्लासिफाइड था एज डेप्रिसिएशन लीज ब्ला ब्ला यहां पे क्लासिफाई है एज 5 कॉस्ट तो फिर फर्क क्या है
और किधर है और नजर क्यों नहीं आता? जी क्लास सोचें, थोड़ी देर आपको दे, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर। कुछ समझ आ रही है? कहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? अदर मिसिंग। देखिए अदर कॉस्ट कहीं पे भी नहीं गई, ना इस प्रोडक्ट के अंदर आई ना इस प्रोडक्ट के अंदर आई, ठीक है? सो दैट अदर कॉस्ट इज मिसिंग, सो लेट्स गो टू दैट अदर कॉस्ट, लेट्स गो टू स्लाइड before it completes this slide. Okay. Other 490,500 ये एक और कॉस्ट थी जो कि मिसिंग थी। अब ये आपके पास कॉस्ट का फुल डेटा है। अब जरा देखिए कौन कौन सी कॉस्ट इस दोनों के अंदर आ चुकी है, कौन कौन सी कॉस्ट इस दोनों के अंदर आ चुकी है। ये अदर कॉस्ट इस दोनों के अंदर नहीं है, ओके नहीं आई 490,500। सर माइनस क्या? सही सी बात है, सर 3 लाख तो अब भी नहीं यार, अब क्या करो? एक और पॉइंट मिस कर कस्टमर रिलेशंस, ठीक है? अगर आपको याद हो हम प्रोडक्ट कॉस्ट जब कर रहे थे हमने कहा था कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो जब प्रोडक्ट की कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ही हम लोगों ने फाइंड आउट की थी तो उसमें हम लोगों ने कस्टमर रिलेशंस को नहीं इसमें ऐड किया हुआ। कस्टमर रिलेशन की कॉस्ट कितनी? 367,500। अब फाइंड आउट 1250। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, लॉस प्रॉफिट, सिंपल इस बिजनेस को माइनस करके पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस। ऊपर वाले से दोनों लॉस है सर, लॉस है। नाउ गो बैक एंड क्रॉस चेक। स्लाइड 14 है, यस सर ओके गो टू स्लाइड 14। सही है, सेम आना चाहिए लेकिन आपने दो चीजें छोड़ी हुई थी, ठीक है? हमने खुद ये कहा था कि अदर कहीं भी नहीं क्लासिफाई हो सकता, इसलिए अदर वी हैड लेफ्ट ऑल टुगेदर एंड देन वी आल्सो लेफ्ट कस्टमर रिलेशन बिकॉज़ वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, उसमें कस्टमर रिलेशन की कॉस्ट नहीं आ सकती, ठीक है? वो भी मैंने छोड़ा हुआ था। अदरवाइज ये कॉस्ट सही है। अगर मैं आपसे कहता कि स्टैंडर्ड एक्सटेंशन की प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट आई है 524,500 एज इनडायरेक्ट और टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड एक्सटेंशन की कितनी है 1,753,500। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एक्सटेंशन आपको प्रॉफिट कमा के देता है या लॉस कमा के देता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि यस ये मुझे इतना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, कस्टमर कैंपस हाउसिंग इतना लॉस कमा के दे रहा है, लेकिन इसमें ये दो कॉस्ट को एलोकेट नहीं किया गया, ठीक है? अगर हम इस दो कॉस्ट को एलोकेट कर सकते तो हम देखते कि ओवरऑल लॉस आ रहा है। गॉट इट? सर जी हमने अदर्स की तो बात की, इसमें कस्टमर रिलेशन इसकी थोड़ा सा कस्टमर रिलेशन। अच्छा दोबारा और से सुने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी लेकिन शायद आपने सुना नहीं, दोबारा और से सुने। कस्टमर रिलेशन हमने ये कहा कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, तो कस्टमर रिलेशन प्रोडक्ट को ट्रेस नहीं कर सकता मैं किसी भी तरीके से, ना इस पे एलोकेट कर सकता हूं क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर रिलेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो इसको एलोकेट नहीं हो रहे क्योंकि उसमें से कोई भी ऐसे काम नहीं था जो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा हो, ठीक? तो वो मुझे नहीं पता चल रहा था तो इसमें एलोकेट नहीं किया। जब नहीं एलोकेट किया तो वो एक्सपेंस तो है, ऑर्गेनाइजेशन में तो एक्सपेंस हुआ है लेकिन इस प्रोडक्ट की इस कॉस्ट के अंदर नहीं है, इस वजह से आपके पास ये यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। सर जो कॉस्ट हमने यहाँ एडी के वो सारे कॉस्ट हमारे पास रह जाते वो हम प्रोडक्ट से फिर माइनस कर लेंगे। वो आप प्रोडक्ट से तो माइनस नहीं कर सकते ना, वो तो आपको माइनस करनी पड़ेगी टोटल से, ओवरऑल से। मतलब सब जो कॉस्ट हमारे पास रह जाए वो फिर हम प्रोडक्ट से माइनस करेंगे। हाँ वो आप टोटल से माइनस करें, ठीक है? ये इज द डिटेल व्हिच इज गिवन टू यू। यही सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर की हैं, हम लोगों ने इसको शॉर्ट करके वहां से डायरेक्ट ये फिगर्स हम लोगों ने डायरेक्ट ले लिए, ठीक है? और ये फिगर्स इस तरह हमने सॉल्व की थी इससे पहले, लास्ट क्लास में हमने इस तरह सॉल्व की थी, याद है? ठीक है? अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 524,500 और डायरेक्ट 427,500 डायरेक्ट ले लिया ताकि वर्किंग कम से कम हो जाए, ठीक है? अगर आप इसको देखना चाहें so this is what it looks like 906,250. This is the product margin
for standard extension, and for custom campus housing it is 589,500. ठीक है, और इस तरीके से आप इसको आगे देख सकते हैं कि आपके पास 589,500 और फिर Cost minus 1,000. सही, क्लियर ना? इज इट क्लियर? जाए आगे? yes. Now let's find out about that particular customer जो हमने इससे पहले किया था. हमने विंडवर्ड यार्ड का देखा था कि विंडवर्ड यार्ड में मेरे कितने पैसे लगते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट EBC से. अब देखते हैं कि विंडवर्ड यार्ड से मुझे फायदा होता है या नुकसान होता है. मतलब एक कस्टमर है, उसको मैंने चीजें दी, उससे कुछ ऑर्डर्स किए, उससे मैंने फायदा कमाया या लॉस किया. The first step in computing Whitworth Yard's customer margin is to gather its sales and direct cost data. ये आपको मिल गया. अब इसके बाद काम आसान है, इसके साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है. सेल्स टू Whitworth Yard is 11,350. इतनी की चीजें इसने मुझसे खरीदी. डायरेक्ट कॉस्ट इन चीजों के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा, डायरेक्ट लेबर इतना लगा, शिपिंग कॉस्ट is 205. Now let's talk about the indirect cost or the cost through ABC. इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमने इसके ऊपर इनकर की थी, वो अगर आपको याद हो हमने इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन की थी, which must be on slide customers. वो ये कैलकुलेशंस हमने कैलकुलेशंस की थी और हमारे पास ये फिगर है. Do you remember this? 6,423. Okay, so 6,423 is my indirect cost. Okay, so now let's go back to slide 38. Okay, 38 नहीं ये आएगा. Okay, sorry. So now this is my direct cost. So my total direct cost is how much? 2,123 plus 1,900 plus 205. ये कितना आएगा आपके पास? 8 2 4,228. ये यार? Yes. Okay. ये आपके पास आ गई इसकी डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने पीछे स्लाइड से ले ली इस 6,423. सेल्स इसकी थी 11,350. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास? 10,651 and sales is 11,350. That means profit is 699. इसमें कुछ और चीज है. सर इसमें हम अदर एलोकेट नहीं करते. इसमें हम अदर एलोकेट नहीं करते. अदर एक्सपेंसेस जो है ना वो बड़े अजीब से, क्योंकि वो अदर है इसलिए उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या है. ना उसका कोई ड्राइवर पता है एक्टिविटी मेजर, ना मुझे ये पता है कि वो उसकी नेचर क्या है, क्योंकि उसने ये कहा कि ये वो कॉस्ट है जो कि कहीं भी नहीं जा रही, उसको उठा के इसमें डाल, तो उसको मैं कहीं भी नहीं लेके जा सकता. उसको मैं ओवरऑल से तो हर जगह पे माइनस कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर नहीं डाल सकता. तो इस वजह से मैं उसको एलोकेट नहीं कर सकता. ठीक है, तो मुझे नहीं पता. इनकंसिस्टेंट अगर आप ओवरऑल में से उसको माइनस कर रहे हैं, लेकिन सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटीज से नहीं, लेकिन अगर आप सारे उनको सम करते हैं उसका और ओवरऑल के बीच में डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि आपने ओवरऑल को एलोकेट नहीं किया था. हाँ. लेकिन ओवरऑल में आप ओवरऑल को एलोकेट कर रहे हैं. देखें वो एलोकेट नहीं हो सकता. एलोकेट यानी उसको मैं किसी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो सेम नहीं, वो सब नेचर एक नहीं. इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो इस प्रोडक्ट पे इतनी लगी, इस प्रोडक्ट पे इतनी लगी, इस कस्टमर पे इतनी लगी, इस कस्टमर पे इतनी लगी. उसका कोई बेसिस नहीं है मेरे पास, उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके बनाया गया है. तो हाँ, एनालिसिस में आई वुड से कि एनालिसिस इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें अदर कॉस्ट की पोर्शन है जो कि अगर देखा जाए तो आपके प्रॉफिट्स को लॉसेस में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक, आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर रहा है. तो मुझे चाहिए कि इसको किसी कॉस्ट पूल में एलोकेट करके उसका कॉस्ट ड्राइवर निकालूं, ताकि मैं एलोकेट कर सकूं कि ये कहां पर जाएगा, ताकि मैं अपनी कॉस्टिंग अच्छे तरीके से कर सकूं और मैं कॉस्ट को रिडक्शन के वक्त इस्तेमाल कर सकूं.
लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में ये डेटा है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इसके अलावा ये कोई कॉस्ट पूल होता तो ये अब तक एलोकेट हो चुका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अदर है तो एलोकेट सर लेट्स से हमारे पास अदर है तो हम 699 से माइनस नहीं, क्योंकि 699 ये जो प्रॉफिट है ये एक कस्टमर से आ रहा है। अब वो जो अदर है वो तो सब कस्टमर्स पे यूज हुआ होगा ना। अब आप कहते हैं कि सर अगर 250 कस्टमर्स हैं, हम आपको याद है 250 कस्टमर्स थे हमारे 250 मुझे 250 याद है। लेट्स गो बैक एंड फाइंड आउट इफ इट्स 250 और नॉट। 250 कस्टमर्स, वन ऑफ द 250 कस्टमर्स मेरे 250 कस्टमर हैं। अब चाहिए या अगर मैं 250 पे किसी तरीके से एलोकेट कर दूं, लेकिन वो तरीका भी नहीं है मेरे पास। सर 699 को कुछ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता इसको, क्योंकि वो ये जो 250 है ये लोग हैं, ये मेरे कस्टमर है सारे 250। 699 मैंने प्रॉफिट कमाया समी से। अब मेरी एक कॉस्ट है जो कि इनके ऊपर मैंने एलोकेट नहीं की, लेकिन उसका कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अगर उसका कोई तरीका होता, मतलब वो एक कॉस्ट होती जिसका पता होता कि वो कॉस्ट इस वजह से ज्यादा होती है तो फिर या इस वजह से कम होती है, तो मैं उसको इन सब पे एलोकेट कर देता तो शायद ये 699 से कम हो जाता प्रॉफिट जो मैंने समी से कमाया। लेकिन अब वो हो नहीं सकता क्योंकि ये कॉस्ट जो है अदर कॉस्ट यहां पर जा नहीं सकता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जी क्लास क्लियर सो फार। प्रोडक्ट मार्जिन पर कस्टमर भी क्लियर हो गया, पर कस्टमर क्लियर हो गया। 699 सर ये 699 जरा आप पीछे स्लाइड में जाएं। पीछे स्लाइड में चले गए जी, एक और स्लाइड में एक और स्लाइड पीछे चले गए। सर ये 205 1900 ये डायरेक्ट कॉस्ट है सर, ये कहां से है सर? ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा या फिर आपको अगर आप खुद डेटा ले रहे हैं तो आपको ये डेटा गैदर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट का डेटा आपके पास होगा जी। एनीथिंग एल्स क्लास? दिस थिंग इज क्लियर? सर ये डायरेक्ट एसेट डायरेक्ट है और माइनस सेट है ना। हाँ ये डायरेक्ट है सारी, यस सर। ठीक। डायरेक्ट कॉस्ट ये सारी कॉस्ट जो है वो है जो इनडायरेक्ट थी, यस सर। ठीक। फिर मैंने सबको ऐड किया, सर ये फिर इसमें से इसको माइनस किया। पर कस्टमर कॉस्ट है सर ये 699 पर कस्टमर कॉस्ट नहीं है, 699 मेरा प्रॉफिट है, मार्जिन। इस प्रॉफिट से इस कस्टमर से विनवर्ड यार्ड ये जो कस्टमर है ये जिसने वो ऑर्डर किया, इससे मैंने इतनी चीजें बेची इतने रुपीस की, इसके ऊपर ये सारे मैंने खर्चे किए जो चीजें मैंने बेची और इससे मैंने इतने पैसे कमाए, ठीक है। इससे मैंने इतना प्रॉफिट किया जी क्लास। सर ये इनडायरेक्ट जो है ना सर ये भी गिवन है, ये हमने भी फाइंड ये इनडायरेक्ट जो थी मेरे पास फाइंड किया। ये मैंने फाइंड किया था। अगर आपको याद हो नीचे सर ये कस्टमर ऑर्डर प्रोडक्ट डिजाइन नीचे ये यहां से जो सारी कॉस्ट है ये एक्चुअली इनडायरेक्ट कॉस्ट जो एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये कस्टमर ऑर्डर, प्रोडक्ट डिजाइन, ऑर्डर साइज, कस्टमर रिलेशन, ये आप देखना चाहते हैं कि ये कहां से आई है मेरे पास। तो अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने कल कैलकुलेशंस की थी वो ये 960, 630, 3363, 1470। सर जो कस्टमर रिलेशन है हमें गिवन मतलब डायरेक्ट फिगर गिवन है 1470 का ये कोड कर दिया सर। कौन सा? 1470 कस्टमर रिलेशन 1470 कस्टमर रिलेशन। हाँ ये तो उधर से मैंने वहीं से उठाया ना, मैंने उसी डेटा से उठाया सारा, ठीक है। ये जो तीन चीजें थी 1 2 3 4 ये हमने कल जो कैलकुलेशंस की थी मैंने वहीं से उठाकर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। एक तरीका ये था कि मैं इसको यूं करके लिख देता और मैंने आसान तरीका किया कि डायरेक्ट कॉस्ट को टोटल किया, इनडायरेक्ट का टोटल उठाया, दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट डाल दी और टोटल कॉस्ट में से सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस किया और आंसर, ठीक है। जल्दी आंसर निकला, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता, स्पेस ज्यादा लगता, मैं जल्दी आंसर पर कस्टमर हमें प्रॉफिट आ रहा है 699 पर कस्टमर नहीं आ रहा, इस कस्टमर से, इस एक कस्टमर से जिसका नाम है इससे मुझे प्रॉफिट आ रहा है 699। बाकियों से कितना आ रहा है, मुझे उसका डेटा उठाऊंगा तब देखूंगा उसको मैंने सेल्स कितनी की, उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट मटेरियल कितना लगाया, इसलिए हमें लॉस भी आ रहा है कंपनी को।
कंपनी को लॉस आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे तो लॉस किसी न किसी कस्टमर से मुझे लॉस हो रहा होगा, या कस्टमर से लॉस हो रहा होगा, या मेरे पास कुछ ऐसी कॉस्ट है जो इसमें अगर इसमें नहीं आई, जो कि अगर आपको याद हो अदर कॉस्ट जो इसमें नहीं, लेकिन वो जब हमने माइनस किया हमने देखा कि लॉस आ गया, लॉस आ गया, इसी वजह से है ना। हाँ इसी वजह से लॉस जी क्लास। और सर एक क्वेश्चन होगा सर, हम ट्रैक लेट्स से हमें पता चला कि हमारा कस्टमर हो गया उसमें लॉस हो गया, तो यूजुअली जो रियल वर्ल्ड में कंपनीज है वो उस कस्टमर को फिर क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि लॉस बेयर नहीं कर सकते प्रॉफिट। तो अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात करूं ना तो इस तरह होता नहीं, इस तरह क्यों नहीं होता, और एक सिंपल एग्जांपल, मैं सनी को बेचता हूं मार्कर, ये मार्कर मैंने खरीदा, अच्छा मैंने मूसा को मोबाइल बेच दिया, नहीं ले सकता सर, वो मूसा को मैंने ये इस्तेमालशुदा रुमाल बेच दिया, ठीक है इस्तेमाल, आप तो ये कर ही सकते हैं ना। ओके सो लेट्स से मैंने मूसा को एक प्रोडक्ट बेचा 20 रुपए, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, इस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल है 10 रुपए का, डायरेक्ट लेबर है 5 रुपीस का, ठीक, और इस क्वेश्चन में शिपिंग भी है तो लेट्स कॉल शिपिंग, और जब मूसा को मैंने ये प्रोडक्ट डिलीवर किया तो उसके ऊपर मुझे 2 रुपए 17 रुपए लगे। फिर मैं हिसाब लगाता हूं, मैं कहता हूं यार लाइट का खर्चा, टोटल खर्चा जो है वो इतना है, तो मूसा के जो काम है उसके ऊपर 1 रुपए सारे खर्चे डाल दो, मतलब लाइट का खर्चा मेरे पास एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, एक चौकीदार है बिल्ला, और मशीन है जो बनाती है, जो भी है 1 रुपए वो खर्चा होगा 18 रुपए, तो मैं मूसा से बेसिकली 2 रुपए कमा रहा हूं, 18 रुपीस की कॉस्ट कर रहा हूं, 20 रुपए का मार्केट बेच रहा हूं, 2 रुपए में मूसा से कमा रहा हूं। क्या इस तरह पॉसिबल है कि आपके पास ये सारा डेटा गिवन हो कि आपका कितना खर्चा इनडायरेक्ट है, और आप किसी को सेल करें और वो सेल 15 रुपीस की करें जबकि आपकी कॉस्ट 18 रुपीस की, इट्स नॉट पॉसिबल, इस तरह नहीं करेंगे ना, ठीक। ये तब हो सकता है जब आपके पास इस कॉस्ट का डेटा नहीं हो, या आपको अंदाजा नहीं है कि ये कॉस्ट कितनी, आपको ये कॉस्ट टोटल में तो पता है लेकिन पर कस्टमर आप नहीं देख सकते या पर प्रोडक्ट नहीं देख सकते, वहां से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। डायरेक्ट कॉस्ट देखिए आसान है, इसके ऊपर कितना मटेरियल लगा आसान है, इसके ऊपर कितना लेबर लगा आसान है, इसकी शिपिंग पे कितनी कॉस्ट आएगी आसान है। इनडायरेक्ट कॉस्ट सारा प्रॉब्लम करता है, रेंट है बिल्डिंग का, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके खर्चा मैं प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर मैं वो कर लेता हूं ओनली देन आई कैन डू अ प्रॉपर प्राइसिंग, अदरवाइज मुझे प्राइसिंग का नहीं पता चलेगा, मैं कहूंगा बस बेच दो यार 15 का बेच दो, ठीक है, बाद में जब मैं देखूंगा मैं कहूंगा अच्छा पर मैं कहूंगा यार बस 18 का बेच दो, 17 आएंगे 1 रुपए ही होगा। फिर जब मैं कैलकुलेशन करने बैठूं तो मुझे पता चलेगा कि मैंने साथ में लॉस कर दिया है। क्यों लॉस किया है? इस वजह से लॉस किया है कि मैं अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को कवर नहीं कर सक रहा। क्यों नहीं कवर कर सक रहा? क्योंकि मैंने इस जगह पर मार्जिन बहुत कम रख दिया, 1 यहां पे चाहिए था कि मैं कम से कम 5 रुपए रखता, और ये प्राइसिंग जो है ये 17 + 5 23 कर देगा। तो फिर इस 5 से हो सकता है कि 3 मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती और 2 मैं प्रॉफिट कमाता। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इस सिचुएशन में आप प्रोसेस करते हैं जब आप अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को सही तरीके से नहीं देख सकते। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट को देखना आसान है, उसको कंट्रोल करना आसान होगा, थोड़ा इनडायरेक्ट कॉस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपके पास, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। गॉट द आइडिया क्लास? गॉट दिस आइडिया? यस सर। आगे जाएं इससे यस जी सर, थैंक्स जी। ये एग्जैक्टली 630 और एग्जैक्टली वो उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मैंने टोटल लिख दिया, ये सब मैंने अलग अलग नहीं लिखा। सर ये डायरेक्ट कॉस्ट मतलब सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ये सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट इज अप टिल हियर, उसके नीचे सर हम कैसे ये इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जी। ठीक है, मैंने आसान तरीका ये किया कि सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट का टोटल ले लिया और इनडायरेक्ट का टोटल ले लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो। सही, सभी वीडियो में आ गया। ओके गॉट द आइडिया? आसान है, यस सर। जाए आगे। यस सर। ओके
So let's move on. Okay. Product margins using the traditional cost system. Okay, class pay attention. मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि अब आगे क्या कर रहे हैं. Okay. So now I want to find out the product margin using traditional costing system. अगर traditional costing system मैं इस्तेमाल करूँ तो product margins कैसे find out हो सकते हैं. Okay. So now sales 2,660,000. ये मुझे पहले से पता. कस्टमर का पास की सेल 540. ये डेटा उसने मुझे पहले से दे दिया था थोड़ी देर पहले जब हम लोग स्लाइड नंबर 36 पे थे and we were talking about product margins 2,660,000 540. ठीक है? Yes sir. So now let's move on. What did you use? Okay. 2,660,000 540 3 million. ये डेटा भी मुझे गिवन है पहले से. डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को भी आप काट लेते. अब मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल करूं. अगर मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल करता हूं तो आपको याद है हम क्या करते थे? डू यू रिमेंबर? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में इससे पिछले कोर्स में हम लोग जब करते थे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करते थे या मार्जिन को, तो हम क्या करते थे? सेल्स उसमें से क्या चीज माइनस करते थे? सीजीएस. और सीजीएस में क्या क्या चीज आती थी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच. ठीक है? और फिर इसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करते हैं. यही तरीका था. अब आ जाए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आ गया. नेक्स्ट थिंग इज एफओएच. नेक्स्ट थिंग इज एफओएच. एफओएच को हम क्या करते थे, किस तरह फाइंड आउट करते थे? अप्लाइड करते थे. अप्लाइड के लिए हम पीओ4 फाइंड आउट करते थे. ठीक है? ओके. अब यहां पर आ जाए. यहां पर अप्लाइड को फाइंड आउट करने के लिए हम पीओ4 फाइंड आउट करेंगे. पीओ4 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला था, एंड इफ यू रिमेंबर द फार्मूला, एस्टिमेटेड एफओएच और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड. ओके. कॉस्ट. अब आपको याद है कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी थी और कहां पर गिवन थी? कॉस्ट कितनी थी और कहां पर गिवन थी? जो हम रेट्स कैलकुलेट करें उससे पहले गिवन थी. ठीक है? जो मेन जो डेटा हमें गिवन था स्लाइड नंबर 14. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मेरे पास कितना था? 1 मिलियन. सही? लेट्स गो बैक. स्लाइड नंबर 30. ओके. ठीक है? यहां पर थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इज गिवन टू मी. एफओएच के बारे में मुझे पता है कि एफओएच की अमाउंट मेरे पास गिवन है और मुझे ये भी पता है कि टोटल कितना है. मेरे पास 1 मिलियन का एफओएच था. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा. ये फार्मूला, यस, फार्मूला पुट कर 1 मिलियन एंड देन यू नीड टू डिवाइड इट बाय एस्टिमेटेड एक्टिविटी. एक्टिविटी आपके पास कितनी थी यार? नहीं यार, नहीं यार, 30,000. नहीं यार. लेट्स गो बैक. ओके. 14 से हमने स्टार्ट किया था. ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था 17,000. 14 से. यहां से हमने मैन्युफैक्चरिंग बोली. फिर मुझे कुछ डेटा इसके बारे में पता चला. फिर मैंने एक्स्ट्रा डेटा यहां से लिया. ठीक है? एक्स्ट्रा डेटा यहां से. मेरे पास इस डेटा से अगर मैं एफओएच फाइंड आउट करता हूं तो एफओएच को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सी बेस लेते थे? कुछ याद है? ट्रेडिशनल सिस्टम. एफओएच को एक्टिविटी हम लोग कौन सी लेते थे? कुछ याद है? ट्रेडिशनल सिस्टम. सबसे मोस्ट कॉमन हम क्या लेते थे? एस्टिमेटेड एक्टिविटी क्या लेते थे? मशीन और लेबर आवर. लेबर आवर. सबसे पहले हम लेबर आवर नॉट गिवन, छोड़. नेक्स्ट. उसके बाद क्या लेते थे? मशीन आवर. मशीन आवर इज गिवन. सो लेट्स यूज दिस एज द बेस. अब तक मेरे पास और कोई अच्छा सूटेबल बेस नहीं था ना. डायरेक्ट लेबर एक सूटेबल बेस है जो नहीं गिवन, तो मशीन आवर गिवन, मशीन आवर. ओके. सो
दैट मींस लेकिन सर ये तो टोटल ये मैन्युफैक्चर को ओवरहेड अगर वन लेंगे तो सर फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट वही चीज है। वो एक्चुअल सर क्या मैं लेबर भी किया ना तो दोनों मिक्स ऐड करके ये पहले भी लेबर नहीं, हम पहले कोशिश नहीं करते कि हम लेबर को इस्तेमाल सर ये ट्रेडिशनल सिस्टम में हम लोग लेबर यूज करते हैं या मशीन आवर्स ज्यादा, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक, ये चीजें सर ये 1 मिलियन हमारे पास अब वापस आए जी फालो ये 1 मिलियन हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 1 मिलियन हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 1 मिलियन इज एस्टिमेटेड और एक्चुअल? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये इनकम इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको दिया हुआ है एक्सपेंस दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, तो ये क्या हुआ? एक्चुअल एक जी हंसला So when नीचे लिखा manufacturing overhead is allocated to products using a single overhead rate on machine hours. हम वही कर रहे हैं। तो ये applied हुआ है। ये अप्लाई हुआ होगा सर। या तो ये ऑलरेडी अप्लाइड हुआ होगा या मेरे पास इस वक्त कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर जिससे मैं इसको देख सकूं कि क्या, लेकिन अगर ये ऑलरेडी अप्लाइड हुआ हुआ है, तो इसका अमाउंट जो आता है अप्लाइड का अमाउंट वो कहां पर जाता है? अप्लाइड एफओएच आपके पास एज अ क्या आता है? एज अ, दोबारा रिकॉल करें सब कुछ, सारे अपने पुराने कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने डायरेक्ट मटेरियल चार्ज कर दिया, डायरेक्ट लेबर चार्ज कर दिया, ओवरहेड को चार्ज करना। ओवरहेड को चार्ज करना मैं कहता हूं मेरे पता नहीं है, बिल्स आएंगे और फिर ये होगा फिर वो होगा, तो मैं कहता हूं इस तरह करते हैं यार एस्टिमेटेड कॉस्ट ले लेते हैं। मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ ले ली, उस वक्त कुछ ले ली और उसको डिवाइड किया मैंने एक्टिविटी के साथ। एक्टिविटी मेरे पास यहाँ पर सबसे अच्छी एक्टिविटी मुझे लगी मशीन आवर्स, मैंने मशीन आवर्स को लेकर उसको डिवाइड कर दिया, मेरे पास एक अमाउंट आ गया, उस अमाउंट को मैंने एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक एक्सपेंस आ गया, वो मैं कहां पर लिखता हूं? Income statement इनकम स्टेटमेंट और कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट या वो फ्लो ऑफ कॉस्ट याद आ रही? वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट किसी को याद है? वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में ओपनिंग कुछ पड़ा होगा, कुछ क्लोजिंग, ठीक है, एसेट का अकाउंट। ये मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो जमा होगी। अगर कुछ और मटेरियल इसके ऊपर लगाऊंगा तो मटेरियल यहाँ पर डेबिट होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, जैसे 50। अगर कुछ लेबर इसके ऊपर लगेगा तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 50। अगर ओवरहेड होगा तो वो यहाँ पर ऐड होगा। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ना, जो मैंने एस्टिमेट करके सब कुछ करके फाइंड आउट करता हूँ, ये मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल, वो यहाँ पर ऐड होता है। जब वो यहाँ पर ऐड होता है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाता है, ये किस्म का एक्सपेंस है, इसके अंदर एक किस्म का एक्सपेंस हो गया, ये यहाँ पर ऐड होता है। ये चीज जब हम लोग अप्लाइड और एक्चुअल दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो या अगर आप दोनों एक ही काम में कर रहे हैं या आप दोनों को अलग अलग काम में कर रहे हैं। एक्चुअल एक्सपेंस जब भी होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और उसका कैश क्रेडिट होगा, और जब आप अप्लाइड करते हैं तो अप्लाइड को हमेशा आप लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और डेबिट साइड पे आप इसको यूं देखते हैं। ये समझे एक अकाउंट है, और अगर अलग अलग अकाउंट है तो ये यहां पर, और जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, बात तो एक ही है, वो चला जाएगा सीजीएस के अंदर डायरेक्ट, वो सीजीएस के अकाउंट के अंदर चलेगा। सीजीएस एंड एक्सपेंस अकाउंट या तो इधर आएगा या इधर आएगा, आई डोंट नो। लेकिन यहां पर अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो एक्चुअली ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस वहीं पर जाते हैं, जो रिजल्टेंट फिगर है वो जाएगा सीजीएस के अंदर, और फिर हमने दो अल्टरनेटिव मेथड्स पढ़े कि या तो वो सीजीएस में जाएगा या ऑल्टरनेटिवली वो तीन जगहों पर जाएगा, ठीक है, तीन जगहों पर एफओएच,
फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, 3 जो होता है, ठीक। उसके अलावा जो भी होगा ये सारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस सारे आपके शो हो रहे हैं कहां पर? इनकम स्टेटमेंट। तो जो इनकम स्टेटमेंट में ये अमाउंट लिखा हुआ है ये ऑलरेडी अप्लाइड होकर या एक्चुअल होकर आ चुका है। जो इसके अंदर एडिशनल पे होना था, एडिशनल आना था, वो इसके अंदर यहां पर आ जाएगा, या तो इसके अंदर यहां पे ऐड होगा, इसके अंदर, और फिर बाकी चीजों के अंदर, और या फिर यहां पर वो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा और फिनिश गुड्स एसेट में चला जाएगा, वो यहां पर नहीं आएगा जो एडजस्टमेंट है, ठीक है। यहां पर एडजस्टमेंट में इस जगह पर यहां पर एडजस्टमेंट हो जाता है, जो कि वन सेकंड यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये अमाउंट जो है ये ऑलरेडी इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये हो चुका। सर ये ठीक है, एक्चुअल ये सारा पुराना कोर्स जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये सारा पुराना कोर्स। अब पुराना कोर्स का क्या था कि FOH अगर अप्लाई करना है तो FOH इज स्प्रेड, ठीक। अगर आपने एक्चुअल FOH करना है तो एक्चुअल FOH में आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो उसकी बजाय आप इसको डेबिट कर रहे होते हैं, ठीक है, आप इसको डेबिट कर रहे होते हैं, और फिर ये जो अमाउंट है ये इसको क्रेडिट, और ये यहां पर जब भी आपको एक्सपेंस कर रहे होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर, आप उसको एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और किसी भी पेएबल को क्रेडिट करते हैं, इसी तरह करते हैं ना, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल्स क्रेडिट। लेकिन अब चूंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्शन के एक्सपेंस है, डायरेक्ट प्रोडक्शन के एक्सपेंस है, तो मैं उसको प्रोडक्शन के अंदर चार्ज करता हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन जो है मेरी वो यहाँ पर हो रही है, इस जगह पर हो रही है, वर्क इन प्रोसेस मेरी प्रोडक्शन है। तो वर्क इन प्रोसेस मेरी प्रोडक्शन है, तो जो भी एक्सपेंस है उसको चाहिए कि वो प्रोडक्शन के अंदर जाए, प्रोडक्शन के अंदर जाना चाहिए। अब प्रोडक्शन के अंदर जो चीजें जानी चाहिए उसकी सारी अमाउंट मुझे पता नहीं है, उसकी सारी फुल अमाउंट मुझे पता नहीं है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की हम एग्जांपल लेते हैं कि वो मुझे नहीं पता होता, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि एक अप्लाइड चीज बना, मैं अप्लाइड चीज बनाता हूं एक उस तरीके से, मैंने वहां पे एक अप्लाइड चीज बना दी। अब मैं क्या करता हूं कि इस अप्लाइड चीज को एक अप्लाइड ओवरहेड अलग लिखें और एक्चुअल एक्सपेंस के लिए अलग चीज लिखें। जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहां पर जमा हो गए, ठीक है, सारे एक्चुअल एक्सपेंसेस जमा हो गए, इसके साथ पेबल्स क्रेडिट हो गए या कैश क्रेडिट हो गए, ठीक, ये उधर चले गए। तो फिर जो अप्लाइड है वो क्या होगा, वो यहां पर हो रहा होगा, ठीक है। अब अप्लाइड यहां पर है, एक्चुअल यहां पे, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ये कंपैरिजन हो गया। अगर ये 100 रुपए है और ये टोटल आ रहा है 110 रुपए, तो आपने अप्लाइड कम किया था, अप्लाइड को 10 रुपए और ज्यादा कर देंगे, एडजस्टमेंट कर दूंगा उसकी। तो मैं कहूंगा कि हाँ ये अप्लाइड सही है, ये अप्लाइड सही है, और ये अप्लाइड को हम इस्तेमाल कर लें। हम इस अप्लाइड को इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोडक्शन के अंदर, हम इस अप्लाइड को प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि ठीक है ये अप्लाइड चला गया प्रोडक्शन के अंदर, और अगर कुछ और फर्दर हुआ तो उसको बाद में फिर देखा जाएगा, वो हम आकर में उसको एडजस्ट कर देते हैं, बस उसको हम CGS में ले जाते हैं, यहाँ जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 चीजें हो गई मेरे पास, एक मेरे पास हो गया मटीरियल, एक मेरे पास हो गया लेबर, एक मेरे पास हो गया FOH, ये सारे मिलके जाते हैं वर्क इन प्रोसेस में, ठीक। वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है, अप्लाइड FOH क्रेडिट हो जाता है, ठीक, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाता है, अप्लाइड FOH क्रेडिट हो जाता है, अप्लाइड FOH क्रेडिट हो गया। फिर अगर कोई डिफरेंस हुआ तो फिर बाद में एडजस्ट कर देंगे CGS में या कहीं भी, जहां पे भी जो थ्योरी में इस्तेमाल करूं। हमने कहा 2 तरीके हैं जी। सर जब एक्चुअल अगर ज्यादा हुआ अप्लाइड से सर, तो फिर CGS ज्यादा होगा। अगर एक्चुअल ज्यादा हुआ हो अप्लाइड से तो आपने अंडर अप्लाइड किया, तो अंडर अप्लाइड किया तो CGS को ज्यादा करना, ठीक है। लेकिन खाली CGS को नहीं, क्योंकि आप कहते हैं कि सर ये तो सब CGS पे नहीं लग रहा, इसमें कुछ चीजें अभी नहीं बिकी, तो फिर फिनिश गुड को भी ज्यादा करना पड़ेगा, और इसमें कुछ चीजें अभी कंप्लीट भी नहीं, तो कुछ वर्क इन प्रोसेस को भी ज्यादा करना पड़ेगा। ये अल्टरनेटिव थी,
आसान थ्योरी ये थी, आसान था कि बस सीजीएस को डालो, ठीक है। ये पुरानी स्टोरी थी, वो नई स्टोरी। ओके, सो लेट्स गो बैक टू न्यू स्टोरी। अब नई स्टोरी के मुताबिक मेरे पास एक्टिविटी यहां पर आ रही थी ओवर मशीन आवर्स, और मशीन आवर्स मेरे पास ये 20,000। ये मैंने कर, जब मैंने ये कर दिया तो मेरे पास रेट क्या है 50 पर मशीन आवर। एंड डू यू रिमेंबर कि दोनों पे कितने कितने मशीन आवर्स लगे थे? ये 20,000 तो टोटल थे ना, 17,500 ये 17,500 ठीक है, 20,000 पूरे हो गए। ओके, तो फिर अगर मैंने इसको अलग अलग प्रोडक्ट को चार्ज करना है तो एक को मल्टीप्लाई करूंगा 50 मल्टीप्लाई बाय 17,500, ये चला जाएगा स्टैंडर्ड टेंशन, और 50 मल्टीप्लाई बाय 2,500 दिस विल गो टू CCH कस्टम कंपस आवर्स। सही है, ये भी हो गया। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द डेटा व्हिच आई हैड। स्लाइड नंबर कौन सी थी? 40 यहां पर इसके बाद ओके ओके जी, 50 पर मशीन आ, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने दोनों को चार्ज भी कर दिया, अमाउंट्स मुझे बता दें। इसका अमाउंट कितना? 375,000 है, 875,000, 125,000. So now if I go to my basic data, okay. Now if I have to write it over here, I can simply say कि यहाँ पर FOH लिखते हैं आप, FOH यहाँ पर कितना चार्ज हुआ, स्टैंडर्ड टेंशन को कितना चार्ज हुआ? सर 3,50,000 ना 8,75,000, 875,000. This is the calculation. 50 multiplied by 17,000. और यहाँ पर कितना चार्ज हुआ? 125,000. हो गया? ठीक है, टोटल इसका आ गया 1 million. तो अब आपके पास 3,200,000 सेल्स में से CGS चला गया, तो आपके पास कितना आ गया? सर ये तो दोबारा हमारे पास 1 मिलियन आ गया, तो इतना प्रोसेस करेंगे। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि वो जो 1 मिलियन जो ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है ना, वो अप्लाइड है। हाँ वो अप्लाइड है, वो अप्लाइड ही होता है। देखें, हमने ये कहा था ना कि अप्लाइड चार्ज होता है, एक्चुअल कहीं भी चार्ज नहीं, शुरू में आप अप्लाइड चार्ज करते हैं, फिर आप उसको एडजस्ट करते हैं, और जो एडजस्टमेंट होती है वो CGS में जाती है, वो CGS के टोटल में जाती है, वो अप्लाइड ओवरहेड के अकाउंट के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो अकाउंट उस वक्त तक बंद हो चुका होता है, वो अकाउंट उस वक्त तक बंद हो चुका होता है, उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, जो कि या तो CGS में करते हैं एक तरीका, दूसरा तरीका 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं, CGS, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। दूसरा तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, तो लोग पहला वाला तरीका करते हैं, सारा का सारा CGS में, जो भी फर्क डिफरेंस ये आंसर है, ये ट्रैक 23,750 ये वाला 873,750. लेकिन अब तक ये जो आया, ये सिर्फ आया आपके पास सेल्स माइनस CGS ट्रेडिशनल. अब एक मिनट, पहले प्रोडक्ट वाइज आई ना, मैं तो प्रोडक्ट वाइज फाइंड आउट करूं, प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट वाइज कितना हुआ, प्रोडक्ट वाइज कितना हुआ जी जी क्लास, प्रोडक्ट वाइज क्लास 6157, ये किसका फोन नंबर है? 6,157,000. अच्छा 615,000, सॉरी 615,750. ये आ गया पहले वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्जिन, ठीक है. सेकंड का क्या है? फिगर्स मैंने हटा दिए हैं, वापस जाओ, ये फिगर ज्यादा है, 69,500 प्लस 87,500 प्लस 125,000, और फिर इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं, आपके पास ये फिगर
जी क्लास 258,000 पॉजिटिव है ये भी। ओके, और इन दोनों को टोटल करके यही फिगर आ रहा है, ये भी चेक सर यहाँ 874,000 आ रहा है। चेक करें। नहीं यहाँ पे 250 है तो जरूर 750 आ रहा है सर, ये आ रहा है। और यहाँ पे भी 750 है और ये 000 तो ये भी 750 आ रहा है, मुझे सही लगता है। इसकी समझिए, बहुत आसान। ये सारा आपका सीजीएस, सेल्स माइनस सीजीएस, ये फिगर आप चेक कर लें, ठीक है। यानी प्रोडक्ट वाइज अलग कर दिया है और ये टोटल है। ओके क्लास, क्लियर सो फार? Clear so far? Okay, so let's move on. 615,750, 258,000. जी जी मुसा, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर एक सेकंड। सर अभी हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं ना, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से हाँ। प्रोडक्ट कॉस्ट कंप्यूट करें, एबीसी से प्रोडक्ट कॉस्ट कंप्यूट। एबीसी से हम कर चुके हैं, अभी ट्रेडिशनल से करेंगे। एबीसी ठीक है? का एबीसी में ज्यादा होगा, एबीसी का प्रोडक्ट कॉस्ट सीजीएस क्यों ज्यादा होगा? उसमें क्योंकि सारी इसमें तो ट्रेडिशनल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आ रही है ना, हाँ, उसके अंदर हम ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि कह नहीं सकता ना मैं। हाँ, इसलिए मैं अभी कह भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ रुकें जरा, थोड़ा आ जाए आंसर तो फिर देखेंगे और फिर उसके अंदर अपनी थ्योरी को फिट करेंगे कि हाँ वाकई मोस्ट एट सम, तो शायद देखा जाए तो हाँ आप सही करेंगे एबीसी का ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन क्या पता जब वहां पे मैं मोस्ट करता हूँ और किसी चीजों को लीव आउट करता हूँ तो अगर वो ज्यादा हो गई तो फिर तो नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसी है। अगर उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि डायरेक्ट कॉस्ट बड़ी है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बड़ी है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो फिर हो सकता है कि हमारा आंसर जी मूसा। सर ये 615,750 किसको समझिए? नहीं समझ आई, दोबारा देख लेते हैं इसको। ये हमने कहा कैसे आया, ये आया तीन चीजों से मिलकर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूं मेरे पास सीजीएस की फिगर आती है ना, तो ये तीनों को ऐड करें तो क्या आएगा, फिगर दें मुझे। तीनों को ऐड करें जी तीनों को ऐड करें, 2,44,250 ये आ गई कॉस्ट ऑफ, और सेल्स आपने कितनी की थी 2,660,000। तो सेल्स में से इस कॉस्ट को माइनस करें, क्या है 615,000 आ गई है। मैं दरअसल शॉर्ट जा रहा हूं ताकि स्पेस कम से कम, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसी तरह शॉर्ट ही काम कीजिए। पेपर की प्रैक्टिस की। हाँ पेपर की प्रैक्टिस आप करें, मेरी तो प्रैक्टिस हुई भी है पेपर की। मैं नहीं मतलब ये क्विज और मॉडल पेपर वगैरह के कह रहे हैं जिस तरह आपने सही है। आज अगर हम इस क्वेश्चन को आराम से खत्म कर सकते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म, इसके बाद थ्योरी है थोड़ी सी, ठीक है, बल्कि एक नया टॉपिक है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्विज करते हैं। क्विज क्या है, एक क्वेश्चन होगा जो कि शुरू से आखिर तक आपने करना होगा। मेरे हिसाब से एग्जाम में आपके पास इस क्वेश्चन के होंगे 15 मिनट एट द मोस्ट, ज्यादा नहीं। एमसीक्यूज कितने होंगे? जितने भी एमसीक्यूज होंगे 15 मिनट के अंदर आपने ये क्वेश्चन करना है हर हाल में। 1 घंटे का पेपर है, सर इसमें तो तकरीबन 7-8 एमसीक्यूज बनते हैं। कम से कम 7-8 से हो सकता है ज्यादा हो जाए। इसलिए आपसे पहले कहा था कि ये आपके मिड टर्म का सबसे बड़ा पोर्शन है। तो अगर 30 मार्क में से ये 10 मार्क भी आ जाए तो 33% ये है, ठीक है, और बाकी फिर बाकी चीजें जो छोटी तो ये बड़ा पोर्शन है, इसको पहले कर रहे हैं और फिर इसके बाद वो छोटी थ्योरी की सर आज ब्रेक भी नहीं लिया। थ्योरी एमसीक्यूज ये दफा दे देना थोड़ी। नहीं सर सर खैर है आप मॉडल पेपर दे देना मुझे- पेपर से पहले। मुझे नहीं अच्छी लगती थ्योरी, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा आसान बनता हो जाता है। मोहब्बत नहीं है सर किसको? थ्योरी और आपके दरमियान। मैं समझा आप कह रहे हैं कि उसी बड़ा हेवी दे ओके। ये आज बहुत फॉर्म में है, ये आज किधर था? सर ये किताब पढ़ रहा है सर, ये किताब का असर है। किसका असर है? सर ये जो किताब ये पढ़ रहा है ओके यहाँ तक क्लियर है क्लास? आज ब्रेक भी नहीं लिए बस
अच्छा इसको तो कंप्लीट करें ना, ब्रेक के पड़े हुए हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर। ओके सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ तक हम कर चुके हैं और हमने कहा कि 258 और 615,750। तो अगर मैं इन दो प्रोडक्ट वाइज देखूं, प्रोडक्ट वाइज, तो हम लोगों ने एक्चुअली प्रॉफिट में जा रहे हैं ना, और इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, जो कि सेल्स माइनस सीजीएस से हो क्या आ रही है, सेल्स माइनस ये ग्रॉस या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। तो मतलब मैं ग्रॉस मार्जिन में तो मैं पॉजिटिव कितना आ रहा है, 615 750 प्लस 258,000 टोटल कितना आ रहा है, 873,750 पॉजिटिव। इसके बाद कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग इस क्वेश्चन में किसी को याद है कौन कौन से थे? सर शिपिंग टू द नॉन देखिए शिपिंग है नॉन मैन्युफैक्चरिंग लेकिन है डायरेक्ट, है नॉन मैन्युफैक्चरिंग लेकिन ट्रेस हो सकती है। ठीक है, ओके आ जाइए। ये मार्केटिंग 65 300 510 which makes a total of 875। अब जरा सर और शिपिंग तो यहाँ पर भी आया है और हमने डायरेक्ट मटेरियल में भी शिपिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सही है। क्या शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है? नहीं। ये जो मैंने यहाँ पे तीन चीजें ऐड की, ये कौन कौन सी थी? मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। तो वहां पे तो मैंने शिपिंग ऐड नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। ओके, ये आ गया 873,750। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टोटल कितना है? 875। आपका मार्जिन अब तक क्या आ रहा है? 873 माइनस लॉस क्लियर। अब ये लॉस इससे पहले जो मैंने कैलकुलेशंस की थी उसमें भी आ रहा था, इसमें भी। अब आ जाए एक चीज, अब उस क्वेश्चन पे आए जो हंसला उसको पूछ रहा था, उस क्वेश्चन पे आते हैं कि ये और इसमें और उसमें क्या फर्क आ रहा है। सो लेट्स डू दैट डिफरेंस। ओके, अब आ जाए इस डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखिए यहाँ पे भी टोटल लॉस तो वही आ रहा है, उसमें भी टोटल लॉस 1250 आ रहा है। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है वो तो वही है ना। एबीसी करने से कोई एक्सपेंस कम तो नहीं होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में लॉस शो कर रहा है, एबीसी में भी लॉस शो कर रहा है। फर्क कहाँ है? ट्रेडिशनल सिस्टम के दोनों फिगर्स याद है जी? सॉरी, ट्रेडिशनल तो ये है एबीसी में। स्टैंडर्ड सेंचुरी में आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हाउ मच? 906,250 दिस इज एबीसी। और यहां पर आप क्या कर रहे थे? 49,500 का लॉस। तो इसका मतलब ये है कि मिक्स अप हो गया है। हम कह रहे थे कि शायद ये हो कि अगर मैं चला जाऊं एबीसी पर तो एबीसी की कॉस्ट ज्यादा हो जाए प्रोडक्ट कॉस्ट। आपने कहा एबीसी की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी सर, तो एबीसी का प्रॉफिट कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट ज्यादा। अब यहाँ पर आ जाए, लेकिन इस केस में प्रॉफिट कम हो गया एबीसी का, यानी ट्रेडिशनल का प्रॉफिट ज्यादा, एबीसी का प्रॉफिट कम। अब ये क्यों, ये क्या होता है? मिक्स रिजल्ट। मतलब ये नहीं कह रहा, हम ये नहीं कह सकते कि एबीसी में हमेशा प्रॉफिट ज्यादा आएगा प्रोडक्ट का, या ट्रेडिशनल में हमेशा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हो रही है। एक प्रोडक्ट में एक शो कर रहा है, एक प्रोडक्ट में कुछ और शो कर रहा है। अब ये कुछ दिमाग में आ रहा है क्यों? स्टैंडर्ड सेंचुरी में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो शायद ज्यादा हेवी थी, ज्यादा तो उसकी वेटेज ज्यादा थी। जब उसमें हम थोड़ा सा पेमेंट करते हैं तो जो हमारा सीजीएस है वो बहुत कम होता है। अच्छा, डिजाइन कॉस्ट भी इसलिए डिजाइन कॉस्ट एक कॉस्ट थी जो कि यहाँ पर जीरो हुई थी, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन वो डिजाइन कॉस्ट अगर मैं ट्रेडिशनल सिस्टम में आऊं तो वो कहां पर है? उसमें तो मुझे कोई नजर ही नहीं आती डिजाइन कॉस्ट। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि डिजाइन में बहुत सारी चीजें थी जो कि यहां पर मिक्स है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर। उसकी क्लासिफिकेशन अलग है, इसकी क्लासिफिकेशन अलग है। इस वजह से मैं एग्जैक्टली वो कॉस्ट उठा नहीं सकता यहाँ।
कि डिजाइन की कॉस्ट किधर है सर, मुझे निकाल के नहीं निकाल सकता। उसके लिए मुझे फिर वो ग्रिड पे जाना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा कि डिजाइन की कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल डिजाइन की कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर डिजाइन की कॉस्ट कितनी है, फिर वो मुझे अलग अलग देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि एबीसी में कॉस्ट ज्यादा आएगी या ट्रेडिशनल में कॉस्ट ज्यादा आएगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस सेम आता है। ठीक, क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, क्लासिफिकेशन का तरीका डिफरेंट है। उसके अंदर जब मैं क्लासिफाई करता हूं तो मैंने परसेंटेजेस दी, वो परसेंटेजेस डिफरेंट, जिसकी वजह से हमेशा एक तरह का आंसर नहीं आएगा, एक तरह का आंसर नहीं आएगा, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट जरा फसी इसको डिस्कशन को खत्म करें, फिर मैं आपको बताऊं। The traditional cost system overcosts the standard sanctions and reports a lower product margin. ठीक है, ट्रेडिशनल लोअर प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम है ना, कॉस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, आवाज है। ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम अंडर कॉस्ट द कस्टमर, कॉस्ट कम कर दिए, एबीसी में कॉस्ट ज्यादा थी तो लॉस था, यहाँ पे ये था। तो मतलब एक यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं दे रहा कोई भी चीज। फर्क क्यों है? 3 रीजंस की वजह से फर्क आ रहा है हमारे पास। ओके, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एलोकेट्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। एक तो वही बात जो हमने बिल्कुल शुरू की कि जितनी भी ट्रेडिशनल सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है सारी की सारी प्रोडक्ट में चली गई, यहाँ पे आ गई। और ईबीसी में क्या हुआ? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कंज्यूम्ड बाय प्रोडक्ट्स टू दोस प्रोडक्ट्स, जो उन प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूम, जो किसी और चीज ने कंज्यूम की वो मैंने डाली नहीं। तो सम, नॉट ऑल, मोस्ट नॉट ऑल, सॉरी मोस्ट नॉट ऑल, एबीसी कॉस्टिंग ओनली असाइंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कंज्यूम्ड बाय प्रोडक्ट्स टू दीस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया, पहला रीजन हो गया। सेकंड, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एलोकेट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग अ वॉल्यूम रिलेटेड एलोकेशन बेस। ट्रेडिशनल में आपको कहते थे ना मशीन आवर, ठीक, और अगर हम एबीसी में देखें सो मशीन आवर वाज यूज्ड इन ओनली वन कॉस्ट, बाकियों का कॉस्ट पूल एबीसी कॉस्टिंग आल्सो यूजेस नॉन वॉल्यूम को भी करता है, लेकिन नॉन वॉल्यूम को भी करता है, इस वजह से भी फर्क आ गया। थर्ड, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग disregards selling and admin expenses because they are assumed to be period expenses, आखिर में माइनस करता है। इसके बाद यहां तक आप पॉजिटिव जा रहे हो, इसके बाद आपने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए। मैंने कहा कि मैंने मूसा को जब कॉस्टिंग करके दी उस मार्कर की, तो मैंने सिर्फ सोचा डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैंने नहीं सोचा कि वो कितनी होगी। तो ये प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल के साथ कि वो पूरी कॉस्ट नहीं बता सकता आपको, वो आपको बताता है सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट, पीरियड की कॉस्ट को वो प्रोडक्ट के अंदर कभी भी चार्ज नहीं करता। एबीसी कॉस्टिंग डायरेक्टली ट्रेसेस शिपिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। देखिए एबीसी ने कौन काम भी तो किया, एबीसी ने तो शिपिंग को डायरेक्ट डाल दिया, शिपिंग डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको डायरेक्ट करो, उसको एलोकेट करने की जरूरत भी नहीं। और ट्रेडिशनल में शिपिंग को यहां पे डालेंगे, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट था उसका, वो भी नहीं डाला। तो फिर एबीसी ट्रेडिशनल की जो प्राइसिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर बेस कर रही है तो वो गलत हो सकती है, और गलत